नमस्ते कलिसिया। We welcome you to our yet another online service. और आपका स्वागत है हमारे और एक ऑनलाइन सभा में। We are so glad that you have joined us tonight. और हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आप हमारे साथ जुड़े हो आज रात। Why don't you stand where you are and we will praise God together. और जहाँ पर भी आप लोग को क्यों ना आप लोग खड़े हो जाए, हम लोग प्रभु की स्तुति करेंगे एक साथ। Come on, church, let's all stand up and praise Him. आइए कलीसिया खड़े हो जाओ, उसकी स्तुति करें इस समय. Come on. It's the way you move and everything you do, the way you touch my heart again. I'm in love with you. I'm in love with you. Yeah, this is why I'll praise you. Yeah, I'll praise you. This is why I'll praise you. I'll praise you. Yeah. हर समय तेरे लिए गाऊं यीशु. हर समय तुझको ही मैं मानूं प्रभु. जो भी होगा मुझको है ये पता कि तू साथ है, चाहे दिन हो या रात है भरोसा. तेरी स्तुति हो सदा, तेरी स्तुति हो सदा, तेरी स्तुति हो सदा. Come on. Yeah, yeah, jump, jump. Praise Him. Hallelujah. Yeah, as I lift my eyes, your light is shining bright, and I choose to sing again. For you give me life, for you give me life. Yeah, yeah. This is why I'll praise you. Yeah, I'll praise you. I'll lift you high. I'll praise you. I'll praise you. हर समय तेरे लिए गाऊं यीशु. Yeah. हर समय तुझको ही मैं मानूं प्रभु. Yeah. जो भी होगा मुझको है ये पता कि तू साथ है, चाहे दिन हो या रात है भरोसा. तेरी स्तुति हो सदा, तेरी स्तुति हो सदा, तेरी स्तुति हो सदा. Come on. Yeah. Praise Him. Hallelujah. Even on the darkest days, nothing will stop my praise. Nothing will stop my praise. Yeah. Whatever may come my way, I'll lift up your name. I'll lift up your name. Yeah, yeah. Even on the darkest days, nothing will stop my praise. Nothing will stop my praise. Jesus, whatever may come my way, I'll lift up your name. I'll lift up your name. Come on, praise Him right now. Yeah, उसकी स्तुति करें. Lift up your voices. Hallelujah. अपने आवाज को उठाएं. Yeah, जो भी होगा मुझको है ये पता कि तू साथ है, चाहे दिन हो या रात है भरोसा. तेरी स्तुति हो सदा, तेरी स्तुति हो सदा, तेरी स्तुति हो सदा. 1, 2, 3, let's go. Yeah, yeah. Hallelujah. We praise you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. What an awesome time of praise. कितना अच्छा समय था स्तुति का.
As we come around the time of giving, और जैसे हम देने के समय की ओर बढ़ते हैं, I would like to share a small scripture from the Bible. और मैं बाइबल से एक छोटा वचन आपके साथ बांटना चाहूंगी। And while I'm doing that, you will see some details on the screen, और जैसे मैं ये कर रही हूँ, आप देखोगे कि स्क्रीन पर कुछ जानकारियाँ दी गई हैं, so that even in this season you can still give in the house of God. ताकि आप इस मौसम में भी प्रभु के जो राज्य है उसमें आप बोल सके। Why don't you make a note of those details? और क्यों ना आप लोग इन जानकारियों का पता ले। And I'm going to read from the book of Genesis chapter 4 verse 3, 4 and 5. और मैं उत्पत्ति का किताब 4 अध्याय 3 से लेके 5वां वचन तक पढ़ने वाली हूँ। And this is what it says. और वचन ये कहता है, When it was time for the harvest, Cain presented some of his crops as a gift to the Lord. और जब ये कटाई का समय आया, काइन ने कुछ फसल जो है प्रभु को भेंट बोल कर दिया। Abel also brought a gift, और आबेल ने भी एक भेंट लाया, the best portions of the firstborn lambs from his flock. और जो भी उसके भेड़ का झुंड था उसमें से सबसे उम्दा भेड़ लाया। Further it says, the Lord accepted Abel and his gift, और आगे वचन कहता है कि प्रभु ने हाबिल का भेंट स्वीकारा, but he did not accept Cain and his gift. लेकिन प्रभु ने काइन के भेंट को नहीं स्वीकारा। This made Cain very angry and he looked dejected. और काइन को इस वजह से बहुत गुस्सा आया और वो बहुत निराश भी हो गया। I have read this scripture multiple times in my life, और मेरे पूरे जीवन में मैंने बहुत से बार इस वचन को पढ़ा है। and I always used to think, why is it that God accepted Abel's and not Cain's gift? और मैं हमेशा सोचती थी कि प्रभु ने हाबिल के भेंट को क्यों स्वीकारा और काइन के भेंट को क्यों नहीं स्वीकारा, Because both of them have given the gift. क्योंकि दोनों ही जन ने भेंट दिया है। This is what I learned. और मुझे ये सीख मिला, Some people give to the God out of habit. और कुछ लोग प्रभु को आदत से मजबूर होकर देते, Some people give to the God because they have been taught that you have to give to God. और कुछ लोग प्रभु को इसलिए देते हैं क्योंकि उन्हें सिखाया गया है कि आपको प्रभु को देना होगा, There would be multiple reasons. और बहुत से कारण होंगे। But this is what I learned in the scripture, that Abel gave the best portions of the firstborn lambs from his flock. और मैंने वचन से ये सीखा, हाबिल ने जो है उसके झुंड के सबसे उम्दा भेड़ और पहले पैदाइशी भेड़ को दिया प्रभु को। Wherein it says, Cain presented some of his crops as a gift. और वचन ये भी कहता है कि काइन जो है अपने फसल का थोड़ा सा हिस्सा प्रभु को देता है। That was the difference. Cain presented some of his crops, but Abel gave the best portions. और यही है उनके बीच का फासला, जो काइन है उसने थोड़ा सा ही फसल दिया था, जो हाबिल है उसने सबसे उम्दा भेंट दिया था प्रभु को। This is what matters. God looks at our heart. और यही मायने रखता है, प्रभु हमारे दिलों को देखता है। He doesn't look at what you give. और वो ये नहीं देखता है कि आप क्या दे रहे हो, He doesn't need anything from you. और वो आपसे कुछ चाहता भी नहीं है, He has everything, but all that he wants is your heart. और उसके पास सब कुछ है, वो सिर्फ आपके हृदय को चाहता है। And you would give the best to someone only if you love them. और आप किसी को उम्दा तभी देते हो जब भी आप किसी से प्यार करते हो। Tonight, why don't you decide in your heart what is the best you can give in the house of God? और आज रात क्यों ना आप आपके दिलों में फैसला करें कि सबसे उम्दा क्या है जो आप प्रभु को दे सकते हो। Why don't you close your eyes and I'm going to pray for you. और क्यों ना आप आपकी आंखों को बंद करें और मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। Father Lord God, we thank you for speaking to us through the scripture. और प्रभु धन्यवाद करते हैं, आपने हमें इस वचन से कुछ बोला है। And I pray every person who's listening us right now, और प्रभु उन सभी लोगों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ इस समय सुन रहे हैं। help us so that we can understand, Lord God, what is the best that we can give to you. और प्रभु हमारी मदद करना ताकि हम ये समझे कि सबसे उम्दा क्या है जो हम आपको दे सकते हैं। And I declare a blessing over each one of them who's going to sow into your kingdom tonight. और प्रभु आपके राज्य में जो भी बोने वाले हैं उन सब पे मैं आशीष बोलती हूँ। And in the name of Jesus I pray. और यीशु के नाम से हम मांगते हैं And we said amen. और हम कहेंगे आमीन। Why don't you stand to your feet and we will together worship God. और क्यों ना आप लोग अपने पैरों पर खड़े हो जाएं और हम साथ में मिलकर प्रभु की आराधना करेंगे। Come on church, let's all stand up and worship him right now. आगे कली से हम खड़े हो जाए, इस समय उसकी आराधना करें, अपने हाथों को उठाकर lift up your hands and worship him right now. Oh Jesus, the weapon may be formed but it won't prosper.
my God will never fail. तुझ में विजय मैं पाऊंगा, तुझ में विजय मैं पाऊंगा। ये जंग है तेरा यीशुआ, तुझ में विजय मैं पाऊंगा, तुझ में विजय मैं पाऊंगा। ये जंग है तेरा यीशुआ। ओ
Father in heaven, we thank you for this time. और स्वर्गीय पिता, समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं। As we prepare our hearts to hear from you, Lord Jesus. और जैसे हमारे दिलों को हम तैयार करते हैं आपके वचन के लिए प्रभु, Speak to us through your Holy Spirit, Lord. अपने पवित्र आत्मा से हमसे बात करना प्रभु। I pray, Lord Jesus, that every word that I speak, let it come out with clarity. और प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ जो भी शब्द मैं बोलूंगा वो साफ तरीके से बाहर आए। And everyone who's listening, Lord Father, let them understand with clarity. और प्रभु जो भी मुझे सुन रहे हैं वो साफ तरीके से समझे। All the glory and honor be to you, Jesus. और सारा आदर और महिमा सिर्फ आपका हो यीशु। Amen. आमीन। Amen. आमीन। All right, tonight I'm going to speak to you about faith, doubt, and fear. आज रात मैं आपके साथ विश्वास, भय और शंका के बारे में बात करूंगा। Specifically, how to move from doubt, fear to faith. और खास करके इस बारे में कि कैसे आप डर और शंका से विश्वास की ओर बढ़ सकते हो। Faith in true God means you are trusting Jesus with every detail of your life. और सच्चे परमेश्वर में विश्वास का मतलब ये है कि आप आपके पूरे जिंदगी को सब कुछ जो है यीशु पे भरोसा करते हो। Even when you're experiencing difficulties. और तभी भी जब भी आप मुश्किल समय में होते हो। You know, doubt stops you from trusting Jesus and then you start worrying. और आपको पता है जब भी आप शंका में होते हो तो आप यीशु पे भरोसा नहीं करते हो बल्कि आप चिंता में पड़ जाते हो। You feel stressed and you try to solve your problems in your own strength. और आपको बहुत चिंतित महसूस होता है और आप खुद के सामर्थ्य से सब कुछ सुलझाना चाहते हो। All of us have experienced these times when we walk in faith and for a while, but then something happens. और हम सब ने ये महसूस किया है कि कुछ समय के लिए हम विश्वास में चलते हैं और फिर हमारे विश्वास के साथ कुछ हो जाता है। And when we go through a difficult time, we start worrying about things. और जब भी हम मुश्किल समय से गुजरते हैं तो हम चीजों के बारे में चिंता लेने लगते हैं। We tend to doubt God's goodness and His ability to solve our problems. और हम प्रभु पे ये शक कर बैठते हैं कि प्रभु शायद हमारे समस्याओं को सुलझाएगा कि नहीं या फिर वो सामर्थ्य है कि नहीं। But God wants us to trust Him more and grow in our faith. और प्रभु चाहता है कि हम उस पे और भरोसा करें और हमारे विश्वास में बढ़ते रहें। More than we trust ourselves. और अपने आप से ज्यादा हमें उस पर भरोसा होना This is चाहिए। what the Bible says. और वचन ये कहता है। Without faith, it is impossible to please God. और विश्वास के बिना आप प्रभु को खुश नहीं कर सकते हो। But do you know that faith also moves the hand of God? क्या आपको पता है विश्वास जो है प्रभु के हाथों को काम पर लगाता है And it makes impossible things possible through God's power. और असंभव चीजों को प्रभु के सामर्थ्य से संभव बनाता है। When? When we believe. और कब? जब हम विश्वास करते हैं। You know, even great men and women of God have experienced these times when they doubt God actually. और आपको पता है जो बड़े प्रचारक है प्रभु के दास और दासियां हैं वो भी इस समय से गुजर चुके हैं जहाँ पे उन्हें विश्वास करने में बहुत मुश्किल होती है। You will see that in the Bible as well. और आप ये वचन में भी देखोगे। So God understands this weakness of humans. और प्रभु हमारा इस कमी को जानता है। And so continually He encourages us through His word and wants us to grow in our faith. तो वो हमें निरंतर अपने वचन के द्वारा उत्तेजित करता है और वो चाहता है कि हम उसमें और विश्वास में बढ़ते रहें। He wants us not to be afraid but to trust in Him more. वो ये नहीं चाहता है कि हम डर कर बैठ जाए बल्कि वो ये चाहता है कि हम उस पे और भरोसा रखें। You know, as I was saying, Bible has many examples of people swinging between faith and doubt or fear. और वचन में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जैसे मैंने बताया था कि कैसे लोग विश्वास, डर और शंका के बीच में आते जाते रहते हैं। Let me tell you a story from Mark chapter 9 verses 17 to 25. और मैं मार्कुस का 9वां अध्याय 17 से लेकर 25 के वचन के बीच का जो कहानी है वो आपको बताना This story चाहूँगी। talks about a father whose son was tormented by an evil spirit. और ये वचन उस बारे में बात करता है एक पिता है और उसका एक बेटा है जिस पे बहुत सारे दुष्ट आत्माएं The थे। father came running to Jesus and said, "Help us if you can." और वो पिता यीशु के पास भाग कर आता और कहता है कि मुझे मदद करो अगर आप कर सकते हो तो। And Jesus replied, "What do you mean if I can?" और यीशु कहता है कि मुझसे हो सकता है इसका मतलब क्या है? Anything is possible if a person believes. और यीशु ये भी कहता है कि अगर एक इंसान विश्वास करता है तो सब कुछ साध्य है। We often approach Jesus in like this father approached. और जैसे ये पिता यीशु के पास जा रहा है हम भी यीशु के पास वैसे ही जाते हैं। We ask for help, but we really do not know if Jesus can help us or not. हम यीशु से मदद मांगते हैं लेकिन फिर भी शक होता है दिमाग में कि यीशु मदद करेगा या नहीं। We really are not sure of it. और हमें इस बात में विश्वास होता नहीं है। Let us look at the life of Elijah as well. और हम एलिया का जीवन देखेंगे। He was a great prophet.
और वो एक बहुत बड़ा भविष्यद्वक्ता He था was a great man of God who did many miracles. और वो एक प्रभु का ऐसा दास था जो बहुत सा चमत्कार कर चुका था। During famine, he was fed by birds, and God sent food for him through birds. और जब भी उसके जमीन पर अकाल पड़ गई थी तभी प्रभु ने उसे चिड़ियाओं के द्वारा खाना दिया, उसे संभाल कर He रखा was able to provide an abundance of food to a starving family during a famine. और अकाल के समय में जो जूझता हुआ परिवार है उसको उसने बहुत सा खाना दिया जो कि नामुमकिन था। And he later raised her son from the dead. और उसके बाद उसने उसके मरे हुए बच्चे को जिंदा किया। But one event stands out of all of his life, लेकिन एक चीज ऐसा है जिसके जीवन में सबसे हटकर दिखता है, which shows his faith actually. जो कि इसके विश्वास का पात्र है। It is in 1 Kings chapter 18. और ये पहले राजाओं का किताब 18वां अध्याय And है। if you look at it, it talks about King Ahab of Israel and his wife Jezebel. और अगर आप वचन पढ़ोगे तो ये अहाब राजा और उनकी बीवी यजबेल के बारे में बात करता है। And they stopped worshipping the one true God. और वो एक सच्चे परमेश्वर का जो पूजा है बंद कर देते हैं। And they were worshipping these idols called Baal and Asherah. और वो लोग मूर्ति पूजा कर रहे थे बाल और अशेरा नाम के भगवानों को। And so many of the people of Israel also started worshipping these idols और बहुत से इजराइल के लोग भी ये मूर्ति पूजा करने पे तुल गए instead of worshipping the one true God. और एक सच्चे परमेश्वर को छोड़कर। The queen also looked after 850 prophets who worshipped Baal and Asherah. और वो रानी ये तय रख रही थी कि उनका जो मूर्ति पूजा है बाल और अशेरा का, जितने भी भविष्यद्वक्ता है 800 के ऊपर, वो भी उसके सामने झुके। On top of it, Queen Jezebel had tried to kill all the true prophets of the true God. और उसके ऊपर ये जो रानी है वो प्रभु के सच्चे भविष्यद्वक्ता को मारना चाहती थी। And God was very angry about this. और प्रभु उस बारे में बहुत गुस्सेल हो चुका So था। God told Elijah to prophesy against Israel. और प्रभु ने एलिया को बोला कि तुम जो है इजराइल के खिलाफ भविष्य दो। And Elijah decided to challenge them to see who the true God was. और एलिया ने उन्हें चुनौती दिया कि तुम जानो कि सच्चा परमेश्वर कौन है। That much his faith was. और इतना ज्यादा था उसका So he विश्वास। challenged and said, "Let's see who's the true God, Baal, Asherah, or the one true God we call Yahweh." और वो चुनौती देता है कि चलो देखते हैं सच्चा परमेश्वर कौन है, तुम्हारा बाल, अशेरा या फिर एक सच्चा परमेश्वर जो यावे है। So Elijah asked the king to order all the people of Israel to come to the Mount Carmel. और एलिया जो है उसने राजा को ये चुनौती दिया कि सब लोग जो है एक पहाड़ पर आए। And along with the 850 prophets of Baal and Asherah. और बाल और अशेरा के जो 850 भविष्यद्वक्ता है उन्हें भी लेकर आए वहां पर। Then Elijah challenged the prophets of Baal to a contest to see whose God was true. और एलिया ने उन्हें चुनौती दिया ये देखने के लिए कि किसका परमेश्वर सच्चा है। So Elijah got 2 stone altars और एलिया जो है उन्होंने 2 पत्थर लाया and got 2 bulls. और उसने 2 बैल लाया। One bull was cut up and placed on the altar to the Baal, और एक बैल को बलि दिया गया और एक पत्थर पर रखा गया। and the other was placed on the altar to Yahweh. और दूसरा जो है यहोवे के सामने रखा गया एक पत्थर। Yahweh is one of the name of God, our true God. और यहोवे हमारे सच्चे परमेश्वर का एक नाम है। Now he said nobody is allowed to light a fire. और उसने कहा कोई भी आग नहीं लगाएगा। Then he asked the prophets of Baal to call out to Baal to send a fire from heaven. और उन्होंने जो है बाल के जो भविष्यद्वक्ता है उनसे कहा कि तुम्हारे परमेश्वर को बोलो कि वो स्वर्ग से आग उतारे। Send the fire and burn the sacrifice. और तुम स्वर्ग से आग उतारने बोलो और इस बलि को जलाने बोलो। Then the prophets of Baal called for Baal the whole day, and they tried to burn the sacrifice. और ये जो बाल के भविष्यद्वक्ता है वो पूरे दिन बाल को पुकारते रहे और वो ये कहते रहे कि तुम आग भेजकर इस बलि को भस्म कर दो। But no fire came down. लेकिन कुछ आग नहीं आया। Then Elijah prayed फिर एलिया ने प्रार्थना किया and called on the true God. और उसने सच्चे परमेश्वर को पुकारा। And immediately a fire fell down. और एकदम सही समय पर वहां से आग आ गया। A fire fell from heaven and burned the bull, the sacrifice, and the altar, and the dust as well. और आग स्वर्ग से इस तरीके से बरसा कि उसने बैल को, उस पत्थर को, नीचे जमे हुए धूल मिट्टी सब कुछ एक साथ जला दिया। And when all the people saw it, they bowed down and started worshipping. और जब ये सब लोगों ने ये देखा वो लोग झुककर आराधना करने लगे। And they said, "The Lord, He is God." और उन्होंने कहा इसका परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। Then Elijah seized all the prophets of Baal and killed them.
और उसके बाद एलिया ने भविष्यद्वक्ता जितने भी थे बाल के सबको उसने वहां पे खत्म This कर shows दिया। that Elijah was superman of faith. और ये बताता है कि एलिया जो है वो एक विश्वास का बड़ा पात्र है। But let me tell you, even Elijah doubted and he had fear in his heart. लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, एलिया भी एक समय पर प्रभु पर शक करने लगा और डरने लगा। His faith turned into fear and doubt. और उसका जो विश्वास है वो डर और शंका में बदलने लगा। When Queen Jezebel heard that the prophets of Baal had been killed, और जैसे ही जेजेबेल क्वीन ने सुना, वो रानी ने ये सुना कि ये जो बाल के भविष्यद्वक्ता उन्हें मारा गया है, she was very angry and she swore to kill Elijah. और वो बहुत गुस्सैल हो गई और उसने कसम खा लिया कि वो एलिया को मारते रहेगी। When Elijah heard this, he was so afraid. और जब एलिया को ये पता चला, वो पूरी तरीके से डर से भर गया He ran away into the wilderness और वो जंगल की ओर दौड़ने लगा and he lay down under a tree and prayed that he would die there और वो एक झाड़ के नीचे प्रार्थना करने लगा कि प्रभु मैं यहीं पे मर जाऊं, because he was full of fear now. क्योंकि वो पूरी तरीके से भय से भरा हुआ था He started to feel sorry for himself. और वो अपने आप के लिए बहुत चिंता करने लग रहा था। This emotion is called self-pity. और ये जो एहसास है उसे कहते हैं कि खुद पर आप दया कर रहे हो। Elijah started to complain to the Lord. और एलिया जो है प्रभु से वो वंचित होने लगा। He complained that he is the only person who had been faithful to God and now his life is in danger. और वो ये कहने लगा कि मैं अकेला व्यक्ति था जो आप पे विश्वास करता था, अभी मेरा ही जीवन मुश्किल में पड़ चुका है। This is called self-pity. और ये कहते हैं खुद पे दया करना। When we lose our faith, we tend to think that we are the only people who are suffering. और जब भी हम अपना विश्वास खो बैठते हैं, हमें लगता है कि शायद सिर्फ हम ही मुश्किल हालात से गुजर रहे We हैं start to feel sorry for ourselves. और हम खुद के लिए दया करते हैं। Self-pity kills faith. और खुद पर दया करना विश्वास को मिटा देता है It promotes doubt. और ये हमें शंका पैदा करता है। Now God had to correct Elijah and tell him that there were 7,000 other people in Israel who had faith in the one true God. और प्रभु एलिया को सही करके ये बताता है कि इजराइल के देश में 7,000 और लोग थे जो सच्चे प्रभु पे विश्वास करते थे। Then he spoke to Elijah and gave him instructions. और उसके बाद उसने एलिया से बात किया और उसे सूचनाएं दी। Elijah had to go back and anoint 2 kings over Israel and Judah. और एलिया को वापस जाना था उस जगह पर और यूदा और इजराइल के देश पर 2 नए राजाओं को अभिषेक करना And था। then he had to anoint Elisha to take his place as the prophet. और उसके बाद उसे एलिशा को भी अभिषेक करना था ताकि वो उसका जगह ले सके भविष्यद्वक्ता बोलकर। Now in order to do this, Elijah had to face his fear. और ये करने के लिए एलिया को अपने डर का सामना करना He था had to go back to Israel where Queen Jezebel could kill him. और उसे वापस इजराइल के देश में जाना था जहाँ पे रानी इजेबेल उसे कभी भी मार सकती थी। But you know what? He decided to walk in faith and leave his fear behind. और उसने ये फैसला किया है कि वो विश्वास में चलेगा और उसके डर को पीछे छोड़ देगा He had to trust God to protect him. और उसे प्रभु पर विश्वास करना था कि वो उसकी रक्षा करे। Later in the story, we see that he was able to walk boldly up to King Ahab and prophesy him that he and Jezebel would die a terrible death. और उसमें इतना हिम्मत था, प्रभु पे विश्वास था कि वो गया उस देश में और रानी इजेबेल और राजा आहाब के सामने उसने ये भविष्यवाणी की कि आप दोनों जन बहुत बुरी तरीके से मरने वाले हैं। And it happened as he said. और जैसे उसने ये बोला वैसे ही वो चीज हो गया। So we see that even Elijah, the great man of faith, also experienced fear and doubt. और हम देख रहे हैं कि एलिया जो सबसे बड़ा विश्वासी था उस समय का, उसके भी दिल में भय और शंका पैदा हुआ है And he had to learn to return to faith by obeying God. और उसे ये सीखना था कि वो कैसे वापस प्रभु पे विश्वास करे। वो कुछ ऐसे कि वो आज्ञा पालन करेगा And by trusting God. और प्रभु पे भरोसा करना। Now let me tell you something. और मैं आपसे कुछ बताना चाहता हूँ। What causes us to swing from faith to doubt and fear? और ऐसे क्या है कि हम विश्वास से छोड़कर हम भय और शंका की तरफ बढ़ Now जाते हैं everyone experiences problems, right? और हम सब समस्याओं से हो गुजरते हैं ना। But how we view our situation shows whether we trust God or doubt His ability to help us. लेकिन हम अपने समस्याओं को किस नजरिए से देखते हैं, यही फैसला करता है कि हमारा प्रभु पे विश्वास है या फिर प्रभु के सामर्थ्य पर शक है। Often we tend to look at the scary circumstance we are in. और हम लोग इस बात में उलझ जाते हैं कि समस्या का कैसे परिणाम होगा We see with our natural eyes. और हम हमारे कुदरती नजरिए से देखने लगते The हैं। situation always looks bad when we see with our natural eyes. और जब भी हम खुद के नजरिए से देखते हैं तो हमेशा समस्याएं बुरी ही लगती है We forget to look with our spiritual eyes at the unseen that is there. और हम हमारे आत्मिक आंखों को भूल जाते हैं और जो चीजें नहीं दिखती उस पर गौर नहीं देते। Spiritual eyes sees things the way God sees things.
और हमारी आत्मिक आंखें चीजों को उस नजरिए से देखती है जिस नजरिए से प्रभु हमें देखना It चाहता है, helps us to see things the way God wants us to see the things. और वो चीजों को ऐसे नजरिए से दिखाता है जैसे प्रभु हमें सच में ही उसे दिखाना चाहता था। We often tend to focus on natural things and not on supernatural. तो हम लोग जो है हमेशा ये जो चीजें आंखों के सामने उस पर भरोसा करने लगते हैं, लेकिन जो चीजें अलौकिक है उस पर गौर नहीं करते। But God is supernatural. लेकिन हमारा प्रभु जो है वो अलौकिक है, He operates at a much higher level than we can see or understand. और वो हमारी समझ से परे काम करता है। If you read from 2 Corinthians chapter 4:18, अगर आप दूसरा कुरिन्थियों का 4 अध्याय में 18 वचन पढ़ते हो, this is what it says. और वचन ये कहता है, So we don't look at the troubles we see now, और हमारा जो मुश्किल अभी है हम उसे नहीं देखते हैं, rather we fix our gaze on things that cannot be seen. और हम उस चीजों पर हमारे नजरिए को टिकाते हैं जो हमारे आंखों के सामने नहीं है। For the things we see now, which is our problems, और हमारी समस्या जो हम लोग अभी देख रहे हैं will soon be gone. वो चले जाएंगी जल्द ही, But the things we cannot see, और जो चीजें हम नहीं देख पाते which is हैं, the power of God or the love of God, जो प्रभु का प्यार या फिर सामर्थ है, will last forever. वो निरंतर कायम रहेगा। You know, Jesus was conceived in Mary's womb not by a man but by the Holy Spirit. और प्रभु यीशु जो है मरियम के गर्भ में वो किसी इंसान के द्वारा नहीं लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा आया, That makes him supernatural. और यही उसे अलौकिक बनाता है। Though he was killed by humans on a cross, he rose from the dead after 3 days. और भले ही उसे इंसानों ने मार कर सूली पर चढ़ा दिया था, लेकिन वो जो है मृत्यु को हराकर 3 दिन बाद जी उठा, That makes Jesus God. और यही यीशु को परमेश्वर साबित You करता know, है। no other deity has done this. और कोई और तारीख में किसी और ने ये नहीं किया है। So he is more than capable for working miracles in our lives तो वो हमारे जीवन में जो है चमत्कार करने के लायक से बना है, and in our church. और हमारे कलीसिया में भी। Now let me tell you something. और मैं आपसे अभी कुछ बताना चाहती What हूँ। are some of the things we see and are worried about? और ऐसी कौन सी चीजें जो हम देखते हैं और चिंता करते हैं, And what are some of the things we can't see but we need to believe in? और ऐसी कौन सी चीजें जो हम नहीं देखते लेकिन हमें विश्वास करना होगा। Let us look at this thing. और चलिए हम इस चीज पर गौर डालते The हैं। natural things that we see that can stress us. और जो कुदरती चीजें जो हम देखते हैं जो हमें चिंता दे सकती है, And the supernatural things we need to believe but cannot always see. और अलौकिक चीज है जो हमें नहीं दिखता है लेकिन हमें विश्वास करना होगा। So what do we see it with our natural eyes? और हमारे जो कुदरती आंखें उससे हम क्या देखते हैं, We see money problems. और हम पैसों की समस्या देखते But हैं, what do we need to believe for? लेकिन हमें किस चीज पर विश्वास रखना है, We need to believe that Jesus provides. और हमें ये विश्वास रखना है कि यीशु हमें देता है। We see sickness. और हम जो है बीमारियां देखते But हैं, we need to believe that Jesus heals and protects us. लेकिन हमें ये विश्वास करना होगा कि प्रभु यीशु मसीह हमें चंगाई देता We है, see broken relationships. और हम टूटे हुए रिश्ते देखते हैं, But we need to believe that the Holy Spirit has power to heal relationships. लेकिन हमें ये विश्वास करना है कि पवित्र आत्मा रिश्तों को वापस जोड़ेगा। We see no job, we see no home. और हम लोग बेघर देखते हैं, और हम लोग जो है बेरोजगारी देखते हैं, But we need to believe that Jesus can provide a job and a house. लेकिन हमें ये विश्वास करना होगा कि प्रभु हमें काम देगा और हमें घर भी देगा। We see sometimes that we are depressed and sad. और हम लोग देखते हैं कि कभी कभार हम निराश है, But we need to see that Jesus can give you supernatural joy. लेकिन हमें ये विश्वास करना होगा कि इस समय में भी प्रभु हमें खुशी दे सकता है। We sometimes see naturally impossible situations. और हम कुदरती तौर पर जो नामुमकिन चीजें देखते रहते But हैं, we need to believe for supernaturally possible things with Jesus. लेकिन हम यीशु के साथ उस समय में जो चीज हो सकता है उस बारे में सोचना Now, चाहिए। seeing with our natural eyes causes fear and doubt because we view things, these situations, through our own thinking. और जब भी हम अपने कुदरती नजरिए से देखते हैं तो वो हमें और समस्याओं के सोच में डालते हैं, क्योंकि हम लोग हमारे अलौकिक नजर से नहीं देखते, We try to solve our problems with our own strength. और हम लोग खुद के ही सामर्थ्य में अपने समस्याओं को सुलझाने चले जाते हैं। But what God says about the situations we see, और लेकिन प्रभु इस समस्या के बारे में क्या बोलता है? He says it's based on His thoughts. लेकिन प्रभु कहता है कि ये सारी चीजें उसके सोच से It's चलती हैं, based on His word and His ways and His power. और ये उसका सामर्थ, उसका रास्ता और उसके सोच से चलता है। So when we choose to believe what He says, और जब भी हम ये फैसला करते हैं कि हम उसके बातों पर भरोसा करेंगे, our fears and our doubts change back to faith. और हमारा जो डर और हमारा जो शंका है वो वापस विश्वास में बदल जाता We है, grow spiritually. और हम लोग आत्मिक तौर से बढ़ने लगते हैं। Let's read from Isaiah chapter 55 verse 8 and 9. और यशायाह का हम 55वां अध्याय में
8वां और 9वां वचन पढ़ेंगे You might have heard this before. और आप शायद पहले इसे सुने रहोगे। My thoughts are nothing like your thoughts, और मेरे विचार तेरे विचारों से परे है and my ways are far beyond anything you can imagine. और मेरे रास्ते तेरे सोच से भी परे है। For just as the heavens are higher than the earth, क्योंकि स्वर्ग जो है भूमि से ऊपर है so my ways are higher than your ways, और वैसे ही मेरे रास्ते तेरे रास्तों से ऊपर है and my thoughts are higher than your thoughts. और मेरे सोच तेरे सोच से परे है। Now what we need to learn from this? और हमें इसमें से क्या सीखना है We need to learn how can we move from fear and doubt to faith, right? और कैसे हम डर और शंका से विश्वास की ओर बढ़ सकते हैं। I'll give you 5 points on how you can do this. और मैं आपको 5 मुद्दे बताऊंगा कि आप ये कैसे कर सकते You हैं। need, first point, और पहला मुद्दा, you need to stop focusing on external circumstances. और आपको बाहरी समस्याओं पर, बाहरी हालातों पर गौर करना रोकना You होगा need to stop focusing on seeing things you see with your natural eyes. और अपने कुदरती नजरियों से आप जो देखते हो उसे रोकना होगा You need to focus on Jesus, the miracle worker. और आपको यीशु पर आपका नजर टिकाना होगा जो चमत्कार करता है। Once I was out to do a concert, और एक बार मैं बाहर गया था एक समारोह के लिए and I was also working at that point in time, और उस समय मैं नौकरी पर भी था and it was the 20th of the month, और ये उस महीने का 20 तारीख था and I exhausted all my money. और मैं अपने पूरे पैसों को उड़ा चुका था That was my natural thing. I was like, I don't have any money. और ये मेरा कुदरती हालात था कि मेरे पास कुछ पैसा नहीं है But I could remember that God is the one who provides. लेकिन मुझे ये याद था कि प्रभु जो है वो देता है And as soon as I remembered that, all the fear was gone. और जैसे मुझे ये याद आया सारा डर मुझसे निकल गया And I trusted in Him. और मैं उस पर भरोसा करने लगा And on that day, और उसी दिन I got 7,000 transferred into my account. और मेरे जो खाते में 7,000 रुपया मिला मुझे And which is enough for me to take for the 10 days. और जो मेरे लिए काफी था कि मैं 10 दिन उससे चला सकूं। But you know what? The person who transferred was unknown. और आपको पता है क्या, जो इंसान ने मुझे पैसा दिया था वो मुझे नहीं जानता था I did not even know who transferred it. और मुझे पता भी नहीं था किसने मुझे पैसा दिया है। It was a miracle when I believed that God provides. और ये एक चमत्कार था जब मैंने ये विश्वास किया कि प्रभु मुझे देगा I stopped focusing on my situation. और मैंने अपने हालातों पर गौर करना छोड़ दिया। Second point, और दूसरा मुद्दा, do not just rely on your own ability to solve your problem. और अपने सामर्थ्य पर आप निर्भर मत रहना अपनी समस्याओं You need पर। to ask the Holy Spirit to help you and believe that He can. और आपको पवित्र आत्मा से मांगना होगा कि वो आपकी मदद करे और विश्वास करना होगा कि वो कर सकता है। Once me and my family were in grave danger, और एक बार मैं और मेरा परिवार बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए थे and I could not rely on my own strength. और मैं खुद के सामर्थ्य पर निर्भर नहीं रह पा रहा था Neither could I rely on my father's strength. और मैं अपने पिता के सामर्थ्य पर भी नहीं विश्वास कर पा रहा So था I asked the Holy Spirit to help us. और मैंने पवित्र आत्मा से बोला कि आप हमारी मदद कीजिए And the Holy Spirit helped us to get freedom from that problem. और पवित्र आत्मा ने मदद किया कि हम उस समस्या से बच निकले And we were freed. और हम वहाँ से बच गए। So what am I saying? और मैं आपसे क्या बोलना चाहता हूँ, Depend on the Holy Spirit. पवित्र आत्मा पर निर्भर रहिए। Third point, और तीसरा मुद्दा, read the Bible and declare God's word over your situation. और वचन को पढ़िए और अपने हालातों पर उस वचन को घोषित कीजिए। You have to read your Bible and declare it over your situation. और आपको आपके वचन को पढ़ना होगा और अपने हालातों पर उसको घोषणा करना होगा। There was a time when I used to work for Singapore Airlines. और एक समय था जब भी मैं सिंगापुर एयरलाइंस के लिए काम करता था And to get promotion, I had to write this IATA exam. और प्रमोशन पाने के लिए मुझे एक एग्जाम लिखना पड़ा And I did not have a clue of what this was. और मुझे कुछ पता ही नहीं था कि ये परीक्षा किस बारे में होता And है I tried to study, but I did not get anything. I didn't understand anything. और मैंने पढ़ने की कोशिश की लेकिन मेरे समझ में कुछ नहीं आया। And this exam was multiple choice. और ये जो परीक्षा था उसमें बहुत सारे चॉइसेस होते हैं And I remember sitting on that table and thinking, my God is omniscient. और मैं वहाँ पर बैठकर ये सोच रहा था कि मेरा प्रभु जो है सब जानता है And He is all-knowing God. और वो सब कुछ प्राप्त किया हुआ परमेश्वर है। And this is what I read from the Bible. God is omniscient. और मैंने वचन से यही पढ़ा कि प्रभु जो है सब जानता है And I started declaring that. और मैं ये घोषणा करने लगा And I said, I am the Son of God. और मैंने कहा कि मैं प्रभु का पुत्र हूँ And I said to myself, if my God is omniscient, that means He is all-knowing. That means He will give me knowledge. और मैंने ये कहा कि अगर मेरा प्रभु सब जानता है तो वो मुझे सारी जानकारी देगा और मैं ये चीज कर पाऊंगा। And you know what? Many people in my office failed, but I passed.
और आपको पता है क्या, मेरे ऑफिस में बहुत से लोग वहाँ पे नापास हो गए, लेकिन मैं पास होकर निकला। This only happened when I read my word and declared it over my situation. ये सिर्फ तभी हुआ जब भी मैंने मेरे वचन को पढ़ा और मेरे हालात पर उसे घोषित किया। Fourth point. और चौथा मुद्दा, Remind yourself about all the ways God has miraculously provided for you. और हमेशा अपने आप को ये याद दिलाना कि प्रभु कैसे चमत्कारी तरीके से आपका मदद किया है। Remember all the miracles that happened in the past. और ये सब याद दिलाते रहना कि आपके पिछले समय में क्या क्या चमत्कार हुआ था। I think about all the miracles that happened, and I keep encouraging myself that my Lord had done those miracles at that point in time. That means it will happen now as well. और मैं खुद को ये सोचकर उत्साहित करते रहता हूँ कि अगर मेरा प्रभु पहले ये सब चमत्कार कर चुका है तो वो अभी भी कर सकता है। Fifth point. और पांचवा मुद्दा, Face your fear. और अपने डर का सामना Do कीजिए not run away from it. और अपने डर से भागिए मत। Ask yourself, what is the worst thing that can happen to me? और आप अपने आप से पूछिए, सबसे बुरी चीज क्या है जो मुझसे हो सकती है। No matter what happens, Jesus is with me is what you need to know. और ना कोई बात नहीं कि कुछ भी हो जाए, यीशु मेरे साथ है, ये आपको भरोसा करना He होगा। promised to never leave you nor forsake you. और उसने ये वचन दिया है कि वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। Trust God to protect you and provide for you. और आप प्रभु पर विश्वास कीजिए कि वो आपकी सुरक्षा करे और आपको वो देते रहे। No problem is too hard for God, but we need to shift our focus from our natural circumstance to our supernatural God. और कोई भी समस्या प्रभु के लिए नामुमकिन नहीं है, बस इतना है कि हमें हमारा नजरिया सामान्य से हटाकर प्रभु के असामान्य पे रंग लगाना होगा। Proverbs 3:5 says, और नीति वचन का 3:5 कहता है, Trust in the Lord with all your heart, do not depend on your own understanding. और प्रभु पर अपने पूरे दिल से भरोसा करना और अपने खुद के समझ पर निर्भर मत रहना। Seek His will in all that you do, and He will show you which path to take. और अपने हर समय आप उस पर भरोसा करते रहना, हर रास्ते में वो आपको बताएगा कि क्या करना है। We sing this song. और आपको पता है हम ये गाना गाते हैं, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. और हम ये गाना गाते हैं कि मार्गदर्शक, अद्भुतकारी, वादा निभाए, नूर अंधकार में। And we say that is who you are. और हम कहते हैं कि प्रभु तू ही है यही। Do we really believe that? क्या हम सच में इस पर विश्वास करते हैं? Sometimes we struggle to believe what we sing, right? और कभी कभार जो हम गाते हैं उस पर हम विश्वास करने से मुखर जाते हैं। We need to open our spiritual eyes and see. और हमें हमारे आत्मिक आंखों को खोलकर देखना होगा। Jesus is really the way maker. और यीशु सच में ही मार्गदर्शक है। He makes a way when there is no way. और वो वहीं पर रास्ता बनाता है जहाँ पर आपको रास्ता नहीं दिखता है। He is really the miracle worker. और वो सच में चमत्कारी प्रभु है। No problem is too big for him. और उसके लिए कोई भी समस्या बड़ी नहीं है। He is a promise keeper. और वो आपका वादा निभाता है। If he says he will provide for you, he will provide. अगर वो कहता है कि हाँ मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तो सच में वो तुम्हारी मदद करता है। And he is the light and shines in your darkness when you cannot see anything. और वो सच में नूर अंधकार में है, क्योंकि जब भी आप अंधकार में कुछ नहीं देखते हो तो यीशु है जो वहाँ पे रोशनी लाता है। When you cannot see a way out, he is your way. और जब भी आपको कोई रास्ता नहीं दिखता है, वो आपका रास्ता When बनता you है। cannot see any truth, he is the only truth. जब भी आपको कोई सच्चाई नहीं दिखती है, वो ही एक सच्चाई बनता है। When you see darkness all around, he is your only light. अगर आप हर जगह पर अंधकार देखते हो तो सिर्फ वो आपका उजाला होता Church, है। no matter what, you can trust him, no matter how big your problem is. और कलीसिया कोई मायने नहीं रखता है कि कितनी बड़ी समस्या से आप कर गुजरे He- हो, आप उस पर विश्वास कर सकते He will never fail you. हैं और वो कभी आपको पीछा नहीं छोड़ेगा। He is our God who loves us and he will never let us go. और वो ऐसा प्रभु है जो हमसे प्यार करता है और हमें वो कभी त्यागेगा नहीं। Amen. आमीन। Let us pray. क्यों ना हम प्रार्थना करें। Father in heaven, we thank you for this time, Lord Jesus. और इस समय के लिए धन्यवाद स्वर्गीय पिता, Thank you for talking to us, Lord Father. और धन्यवाद कि आपने हमसे बात किया प्रभु। Thank you, Jesus, that you give this promise that you are always there, Lord Father. और धन्यवाद प्रभु ये वचन के लिए कि आप हमेशा हमारे साथ हो। Father, we ask right now, help us to move from our doubt and fear to faith. और प्रभु हम मांगते हैं कि हमारे भय और शंका से हम हटकर विश्वास की तरफ बढ़ें। Help us to trust in you to protect us, Lord Father. और प्रभु हमारी मदद करना कि हम अपनी सुरक्षा के लिए आप पर भरोसा रखें। Help us to trust in you to provide for us, Lord Jesus. और प्रभु हमारी जरूरतों के लिए हम आप पर भरोसा करें। In everything we do, Lord Father, let your name be glorified, Lord. और हम जो कुछ भी करें प्रभु सिर्फ आपके नाम की महिमा हो। Amen. आमीन। Thank you for joining us. और धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। Hope you enjoyed your time this week. और हमें यकीन है आज का शाम आपका अच्छा बीता है हमारे साथ। We'll see you next week at 6 o'clock online.
और अगले हफ्ते फिर से 6 बजे हम आपको ऑनलाइन में मिलेंगे। Stay praising God and stay safe. और प्रभु की स्तुति करते रहिए, सुरक्षित रहिए।